Yes, it's visible. Okay. So I'm on slide number 27. So in case there is any, yeah. So let me talk about the advantages. So first of all, there is a positive relationship between the teacher and student. Secondly, there is a wholesome development of the student. Secondly, there is a positive identity. Every student will have a sense of belonging and sense of ownership in the classroom, that they own this classroom. There will be there will be a relevant teaching which will be done. They are learning what is relevant to them. Then once again, we're talking about the competency. There will be a competency progression. That means the student will become more and more competent, they will become more and more experienced, and they will have a very good amount of self-confidence in them. And very important part of this type of teaching is that it is a anytime, anywhere learning. It is not only confined to the classroom, but it can happen in a camp, it can happen at some field trip, it can happen in some park, it can happen when they go out for a field visit. So this type of learning is not confined that the teacher is only answerable in a 30-minute or a 50-minute class. Next slide. uh, this is again the benefits which we have already done, so I'm not repeating them. We can have the next slide. Uh, this slide, this actually shows certain activities which can happen in the student learning program. Now, here we can see that apart from the lectures, we can have independent projects which can be given to the students. So while there is a project, the student can make its own project and work for it. And finally, there is a very good learning outcome of these projects. Now, there can be a very important emphasis on writing or learning the journals, writing articles in certain journals and reading and reviewing the articles which are present in the journal. Third important point is peer monitoring. This type of learning helps to understand each other's positivity and negativity, the weak points and the strong points of each other. So this is very important that a student can help and let the other student know that what are the positive points of the first one and what are the negative points of the other one. So it is very easy for the students to mend them and to actually cultivate the negative points, and it boosts the confidence of each other. Now, there can be debates, which is very important. Then they can be writing the newspaper articles and the editorials. The classroom presentations, the PowerPoint presentations can be done, and they can be poster presentations, they can be role plays, they can be nukkad nataks, and they can be a lot many activities. Next point, next slide. Now, this slide shows that there is a difference between the teacher-centered and the student-centered learning. And here we can see that a teacher is just writing on the board, and this is unidirectional. This is a monologue where whatever teaching or whatever learning the teacher wants is being given to the student. While if we talk about the student learning program, then there is an environment, there is the engagement, there can be interactions, there can be instructional strategies which can be followed, and they all can together make the student learn a lot. Next slide. Now this slide shows, this is slide number 31, so that it's going on smoothly. This slide, it shows that when we shift from teacher-centered learning to the student-centered learning, we are actually shifting the role of the teacher. The teacher is not a director or a leading learner now, but the teacher shifts from a director and a leading learner to a nurturer who nurtures the students, the pupils, and moreover, he or she becomes the facilitator who is helping the students to learn whatever they want to learn. So, next slide. So now in this, again, there is a difference which is being shown through a diagram, that in TCL, there is a direct teaching, while in SCL, there is a student independent teaching, and here the students are more engaged in the teaching. Next slide. Now here in this slide, we can see that the student is helped or learned by the educators, by their prior knowledge. Now this is very important point which I want to highlight, that it's very important to understand what the student already knows. So then it becomes very easy for us to assess the level of the student
and then we can proceed. If the student doesn't know the basic idea of the topic which you are teaching, there is no point that you start the topic from a very high notion. You have to start with the basic. So it is very important to understand in a SCL that the prior knowledge of student keeps a very important place. Then the educators definitely keep an important place. The family who is interacting is very important. And the peers are again the most important thing in the student learning program. Because here the success criteria, the personalization of the education and the learning will depend on all these factors. Now, next slide. I would like to skip this slide because it is almost a repetition of what we have been talked about. So we can have the next slide. And let me tell you that the student-centered learning has to be in the initial slides we had been talking about the personalized teaching. So actually now I can say that the student-centered learning can be called a personalized learning or personalized teaching, where the teacher has to actually look for what the student wants and what the scope of the study is, whatever the scope of study that the student is expecting from an institution or from a teacher. Next slide. And slide number 36, which I want to show to be very specific. This is a study which has been a research study done at Stanford University in 2014 by Barbara McKenna. Now, this lady, she had done a research where she could assess that when they had a talk and a research with the students, they could understand that the students, they actually wanted a classroom which was not the regular one. They wanted a classroom where they could themselves got engaged. And there was a research done where two groups were made, and the learning outcomes in the student-centered learning was absolutely fantastic, and the results were amazing. Next slide. So finally, taking this presentation to a culmination, let me just analyze and say that finally, what do we want from an education system? We want happier students, we want less stressed teachers, and we want a better parent-child relationship, and of course, a better society and a child relationship. So to understand this and to make this happen, it is very important that we should shift from the teacher-centered learning to the student-centered learning. And in some cases, we can also do this, that we can have a combination of both the kind of teachings. And we should make a mixed approach where we should understand that all the students, they should get whatever they actually want. So finally, I would like to conclude my presentation by saying that there is a process which will require a change, and this change has to be from the standardized education system to a personalized education system. And this change will not only bring about a knowledge and skill development and ethical development and moral development, but an overall development of the child, along with a very important part that they will learn what they want to learn. They will learn in the manner in which they want to learn, and they will learn the depth of the subject which they actually want to learn, and by which they will have an efficiency in future in whatever thing they do. They can use that education in whatever work they do. So by that, I would like to end the presentation. I'm really sorry for the network issue. Something really went wrong with my network. So I'm really sorry for that. Few things, sometimes technology is very good, but sometimes technology can fix a lot of, it can put you in a fix. So I'm extremely sorry for that. So I end my presentation. Thanks a lot. Yeah, thank you so much, ma'am, for a very fruitful presentation. Now, I would like to invite all the participants to ask your question related to student-centered learning. You can also text in chat box or ask direct to the expert after unmute your microphone. Excuse me, madam. Yeah. Madam, we have so many policies like midday meal scheme, DPEP, and different types of schemes are there where teachers are involved in the schools.
and from the morning to the afternoon, they are engaged in the classes, whether it is primary school, ME school, or in central schools. And even they are missing their family and children, and they are acquainted with their students so much and involved in the courses. But still, then why it is dichotomous that you are telling about teacher-centered learning and the student-centered learning? Can you elaborate your question? I'm not able to get the question correctly. Can you elaborate, sir? Madam, in CBSE and ICSE curriculum, every teacher is engaged in the courses and with the students. And from morning to afternoon, they are engaged. And also different schemes are there, midday meal scheme and others, where headmasters and teachers, they are involved. Yeah. So you see how they are sacrificing their family and they are engaged in the classes and schools. Madam. No. So what your question is that these midday, I mean, the teachers, they're having a lot of other responsibilities. So you're talking about that? Yeah. Yeah, so see, that's what I'm saying. That see, it is not They are managing different classes. Class teachers are there. They are teaching their subjects, and even the lesson plans are maintained. Yeah. And again, the internal assessment and examinations are there. The valuations are there. Yeah. Madam. See, the problem is that definitely, I'm saying that it is very different in the Indian education system scenario, that the government is there to impose certain policies, because the government wants to not only wants to have a good picture, but it is their responsibility also. I understand that. But the problem is that we cannot always, new education policy that is already implemented. No, new education policy is implemented, sir, but there are the guidelines are whatever the guidelines are they there keeping in mind the students learning? See, they have introduced midday meal, which is a very good effort, because what do they want is that they want to invite or they want to attract the rural children to school. बिकॉज उनके घरों में खाना नहीं है, गरीब हैं बच्चे, तो यदि आप खाना प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे दौड़ के स्कूल आएंगे, और जब दौड़ के स्कूल आएंगे तो आप उनको पकड़ लो और उनको पढ़ाओ. तो ये तो बड़ा अजीब मुद्दा है. No, that is to reduce the dropout rate. नहीं सर, ओके ठीक है, एक तो ड्रॉप आउट रेट हो गई कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आपकी बात है कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि घर में खाना नहीं है, हम काम कराएं या स्कूल भेजें, तो उन्होंने खाना प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया. लेकिन आप जो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, That is fine. I understand. I totally agree with that. The problem is that sir, देखिए जो रूरल बैकग्राउंड है उसको वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही अलग किस्म का मुद्दा है. वहां पर तो बात यह है कि हम स्टूडेंट को स्कूल में बुलाएं कैसे, हम उस मुद्दे पर बात करें. यहाँ पर जो हम अभी आज जो हमारी बात हो रही है, ये थोड़ी सी एक ऐसे लेवल की बात हो रही है जहां पर स्टूडेंट आ रहा है, खुशी से आ रहा है, माँ बाप भेज रहे हैं, खुशी से भेज रहे हैं, मगर वो स्टूडेंट एक्चुअली लर्न नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर एक्चुअली हम एक स्टेप ऊपर की बात कर रहे हैं. आप जो बात कर रहे हैं सर वो बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो हम बेसिक एजुकेशन से थोड़ी सी ऊपर की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि जहां पर स्कूल रन कर रहे हैं, जहां पर बच्चे भी आ रहे हैं, जहां पर फीस भी आ रही है, लेकिन वहां पर भी हमारा बच्चा जहां पर आप समझ लीजिए कोई गरीब माँ बाप हैं जो कि किसी तरह अपना पेट काट के बच्चे की फीस भी भर रहे हैं, उसको स्कूल में भी भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमारा बेटा बहुत कुछ या बेटी बहुत कुछ सीख करके आगे बाहर निकलेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन तो अपने ही हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको तो अपना पैसा बनाना है, अपना नाम बनाना है. बात ये हो रही है कि वहां पर भी जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके बच्चे तक उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहा, उसको एक बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म की एजुकेशन, बहुत ही नॉर्मल किस्म की एजुकेशन दे रहा है, जो कि जरूरी नहीं है वो बच्चा ले भी पा रहा है या नहीं. तो यहाँ पर हम उस लेवल पर बात कर रहे हैं. रूरल बैकग्राउंड पे सर वो एक अलग
वो एक अलग किस्सा है हमारे देश का, जहां पर ये बहुत ही दुखद भी है कि सरकार पैसा भी खर्चना चाहती है, सरकार ने टीचर भी अपॉइंट कर दी है, टीचर पढ़ाना भी चाहता है और पढ़ा भी रहा है, लेकिन बच्चे या तो आ ही नहीं रहे हैं। अब उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, हम उसकी तह में जाएंगे तो काफी लंबा डिस्कशन होगा। लेकिन यदि हम खाने के लिए उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं या उस बहाने हम ड्रॉप आउट रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तरीका है कि हम बेसिक एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा उससे एक लेवल सर ऊपर है। यहाँ पर ये बात है कि बच्चा आ रहा है, फीस पे हो रही है, स्कूल फुल है और सबको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो पढ़ाई हो रही है उसका जी private institutions are performing poor, then ultimately we have to improve the standards. यस सर। एंड दूसरी बात सर, जो जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं वो प्राइवेट तो नहीं है, वो बढ़िया स्कूल्स है, गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, लेकिन वहां पर भी जो हम बात करें कि जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, उसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमारी पेडागोजी को हमें थोड़ा सा चेंज इसलिए करना पड़ेगा ताकि हम बच्चे को, हर एक बच्चे को हम वो लर्निंग दे पाए जो कि टीचर के पास है। हमारा टीचर बहुत ही उम्दा है, हमारा टीचर बहुत ही लर्नेड है, लेकिन उस बेचारे टीचर पर इतना प्रेशर है इंस्टीट्यूशन का कि उसको 10 काम, क्योंकि वो जब तनख्वाह देते हैं तो वो चाहते हैं कि वो 10 काम और कर दे स्कूल के, तो वो टीचर तो फंस के रह गया है। वो यदि एक एक बच्चे को डील करने बैठेगा तो वो तो पागल हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि उसके पास समय ही नहीं है। तो ये एक्चुअली ये एक ऐसी ड्राइव है जो कि पूरे सिस्टम में चेंज इसका लाना बहुत जरूरी है, उसके बिना इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत अच्छा आपका है सवाल, एंड डिस्कशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो हम that happens. It's not that that is not happening. Lacuna is there, but basically in certain private institutions, those are not caring properly, and they are taking a huge cost. And also the courses are not covered and standard is low. जी सर, वो क्लास में, जी हाँ, क्लासरूम में वो उनका कोई, बिल्कुल उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। कितने नंबर आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ का बहुत ही प्रेस्टिजियस जयपुर का एक स्कूल है जिसमें ये कहा जाता है कि टीचर तो बेचारी बच्चों को चुप कराने में ही समय पूरा पीरियड हो जाता है टीचर का। तो आप यदि 80-80, 90-90 बच्चे एक क्लास में भर देंगे तो टीचर क्या तो पढ़ाएगा, क्या तो समझाएगा, और क्या बच्चा समझेगा। तो ये टीचिंग तो एक तरह से सिर्फ पेपर वाली टीचिंग है कि आपको पेपर पर डिग्री मिल गई, आपने कुछ नहीं सीखा अपने 12 सालों में स्कूल के। That happened, madam, because of this liberalization, privatization, and globalization. जी सर, बिल्कुल। In the mid India, central India, in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, in those areas, Ajit Jogi, he expired recently. He initiated process of liberalization, privatization of these schools and education policy in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The same thing, madam. When where the privatization is there, then ultimately the standard is low. यस सर, एंड अदरवाइज ये समझा जाता है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकल के बहुत लर्नेड बनेंगे और बहुत फीस पे करी है तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये एक नोशन जो है, इसको बदलाव की आवश्यकता है। मैडम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, मैम। Yeah. It was very effective and informative. Ma'am, but I'm really sorry for the network problem. I'm feeling so bad. I'm feeling so bad. It's for the first time it has happened, and it's okay. It happened. We have to adjust with all these things. This is life, actually. Tell me, ma'am. So actually, your presentation was indeed effective and informative. But what I wanted to know was that in your student-centered teaching, you have highlighted on which level of students. Like you told, let the students select their topics, let the students select their way of learning, let the students choose this, means whatever it is. Which level of students will choose? Ma'am, we are actually focusing this portion in the students who are less than, below the secondary level. See, when it comes to the 10th and the 12th grades, in the 12th grade, it is automatically, they have already chosen what they want to study. So 11th and 12th, definitely we are not talking about. 10th, we are not talking about, is the reason being that 10th is a board year. So it is very difficult for the whole nation, to go differently. But till 9th standard, which are the formative years of any individual,
We can, a school can always plan this. There is no problem. It is very easy. It can be done and it should be done. Let me tell you that initially, see, it is up to the school to plan the curriculum. So what they can do is, instead of planning the yearly curriculum, they can plan like maybe quarterly, not even monthly, at least quarterly. So what they can do is, they can have a good discussion in the first week, and with group discussion and with lot of communication, they can ask the students to just note down the points, note down the topics, and note down the extent of the depth of the topic which they want to study. And when the teacher see, the teacher is always a facilitator here, because he or she has to command. We cannot leave everything to children. We know how children are, so we cannot do that. But it should be done in a manner, and ma'am, let me tell you that you will have at least 25% more topics when students, they say that we want to learn this, apart from what the book school has finally decided which is to be taught. So they will have everything under the sun that they would want to learn. So why not teach them what they want to learn in the manner they want to learn, rather than just making them learn whatever the school wants them to learn. So And I what think about till the 9th, yeah. evaluation aspect? Ma'am, evaluation aspect, yeah. How No, will no, the no, ma'am. child No, no, assess? no, ma'am. Not the books. Let me tell you, it used to happen in my school also. I'm from a convent, so we had those nuns and sisters. So they had a very good approach. What we used to have was that in the unit test, we used to exchange. Yeah, the two of the best friends were asked to sit together, and they both used to exchange their answer sheets, and teacher used to write the answers on the board. So they actually they were very short answers, and multiple choice and true and false, which was very easy to evaluate. So now it is so nice, because everyone is vigilant, everyone is working, everyone is knowing what is happening, and it becomes so exciting for the whole class, rather than a teacher wo बेचारा 50, 70, 80, 200 कॉपियां लेकर के जांचे जा रहा है. That it's, see, जो सुनने में ही लगेगा कि the prior thing was so nice, and तुरंत ही result आ जाता है. Everyone knows how many marks do you have, and you know that where have you committed a mistake. So it helps the students to grow and gain confidence. Yeah. Thank you. Thank you. Any other queries we have? Yes. Hi. Yeah, Ranjita, you are very much. Yes, I can. Thank you so much, ma'am. I think आप सबने मुझे माफ कर दिया for the network issue. I'm again asking sorry for that. वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आपको yeah. क्योंकि हमको सभी को पता है कि जो डिजिटली है, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता. जी मैम. लेकिन मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे आप मेरा इससे मुझसे पहले ही मैम ने पूछा है कि जो टॉपिक बच्चा खुद सेलेक्ट करना चाह रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ. लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये केवल एक तो टीचर कैसे डिसाइड करेगा, तो पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा करिकुलम ही सेट हो गया है, सब कुछ सेट हो गया है. अगर जो पूरा करिकुलम है वो ही अगर बच्चों को उनका पूरा रिसर्च किया जाए, उनसे पूछा जाए उनकी क्या उनकी जरूरतें हैं, उस हिसाब से अगर करिकुलम बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से टीचर के लिए भी इजी होगा और स्कूल के लिए भी इजी होगा. बिल्कुल मैम, आपका ये बहुत अच्छा सजेशन है. और मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए कुछ जगहों पर, कुछ स्कूल्स में ये शुरू हुआ है. मैं दिल्ली में कुछ स्कूल्स को जानती हूँ, जहाँ मेरे कुछ दोस्त टीचर हैं. उन लोगों ने जो, और देखिए वंस अगेन हम ये बोर्ड क्लास से नीचे ही कर सकते हैं. तो वहां पर ये हुआ कि जो पहला महीना था, जो जुलाई का महीना या अप्रैल का महीना, जो पहला स्कूल खुला, उस महीने ना कोई क्लासेस हुई, ना कोई यूनिट टेस्ट हुए. उस महीने सिर्फ और ना ही कोई अलग अलग सेक्शन में बच्चों को बिठाया गया. वहां पर बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल हम 6th स्टैंडर्ड लेते हैं, तो 6th स्टैंडर्ड में मान लीजिए 400 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं. उन 500 बच्चों की एक कॉमन असेंबली की गई, और उनको ये कहा गया कि हम
20 के, 25 के, 30 के, मैक्सिमम 25-30 के, और उन ग्रुप्स में उनको कहा गया कि आप अपने अपने इंटरेस्ट से अपने अपने दोस्तों के संग अपने 25-25 के ग्रुप बना लीजिए। बच्चों ने वो ग्रुप बना लिए और उसके बाद में 4-4 ग्रुप को एक एक क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आसान क्या हो गया कि बच्चे अपने दोस्तों के संग बैठे हैं, तो उनमें एक्साइटमेंट अलग ही है। अब वो रोज स्कूल आना चाहते हैं, स्कूल में आके बोर और आपस में चिट चैट करेंगे, आपस में खूब डिस्कशन करेंगे और ऑटोमेटिकली जो लर्निंग है वो उनकी एनहांस होगी। अब कि हर ग्रुप को ये कहा कि हम आपको साइंस बायोलॉजी यदि पढ़ाएंगे तो आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी, हम बताना चाहते हैं एनवायरनमेंट, हम बताना चाहते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है, या हम और बहुत ही बेसिक बात करना चाहते हैं कि इकोसिस्टम की क्या क्या लेयर्स होती हैं, स्पेस में क्या होता है। तो आप एक एक टॉपिक सब लोग सोच के आइए कि जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। मैम, ये हुआ है एक दिल्ली के एक स्कूल में, नाम यहाँ इसलिए नहीं लेना चाहिए बिकॉज हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ भी किसी का भी कुछ हमें ओपन नहीं करना चाहिए, बट ये अच्छी चीज है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही अब ये हुआ, आप समझिए 1 हफ्ते में एक बाढ़ सी आ गई टॉपिक्स की, और हर बच्चा इतना एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि मुझे ये भी पता करना है कि मैम मुझे स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में जानना है। कोई बच्चे ने कहा कि मैम मुझे ये जानना है कि वो जो टच मी नॉट वाला प्लांट है वो अपने आप कैसे सिकुड़ जाता है। एंड नाउ दे हैड एन अमेजिंग वे ऑफ टीचिंग। टीचर्स ने इस चैलेंज को बखूबी लिया और उन्होंने किसी किताब को रेफर नहीं किया। हर टीचर ने प्रॉब्लम्स उठाई और उन प्रॉब्लम्स से उन्होंने उनको ब्रॉड टॉपिक्स में बांट दिया। जैसे यदि प्लांट की कोई क्वेरी आई तो उन्होंने एक प्लांट लाइफ पे एक चैप्टर कर दिया और उसमें वो सारी क्वेरीज डाल दी, और फिर उन क्वेरीज को जो पढ़ाया उन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने बुक को छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन उन्होंने उनके अंदर ये एड ऑन्स कर दिए। और ये करते ही सबको, बच्चे को ये समझ में आया कि एक्चुअली तो मैंने जो मांगा है वो ही पढ़ाया जा रहा है, जबकि टीचर इतना स्मार्ट था कि उसने उसके साथ साथ में बुक कब पढ़ा दी है बच्चे को पता ही नहीं चला। कभी उसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसको कोई बुकिश ज्ञान दिया जा रहा है, और बच्चे ने मजे मजे में और इंटरेस्ट के संग में लर्न कर लिया जो उसको लर्न कर। देखिए मैम, बच्चे भी फाइनली टॉपिक कहाँ से लाएंगे, इस नेचर से ही लाएंगे, अपने आसपास से सराउंडिंग से ही लाएंगे। तो बुक में भी है तो वही, लेकिन उनका एक सेट तरीका है पढ़ाने का। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, लेकिन एनसीईआरटी किताबों को मैंने देखा, एनसीईआरटी की जो 10th की किताब है, 9th की किताब है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस है उनका। लेकिन होता क्या है उन किताबों में, कुछ एक जो कमी मुझे नजर आई, मुझे नहीं प्लेटफॉर्म पे या नहीं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात है, बोल सकते हैं डेमोक्रेसी में, कि उसमें क्या होता है कि एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया और उस एक्सपेरिमेंट को बस बूझो तो जाने करके छोड़ दिया। अब हो क्या रहा है कि हर वक्त हर स्कूल में हर परिस्थिति में उस एक्सपेरिमेंट को करने की सुविधा तो नहीं है। अब कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमारा टीचर भी वेल वर्स्ड हो। तो कहने का ये मतलब है कि कोशिश तो की गई है एप्लीकेशन बेस्ड करिकुलम को लाने की, लेकिन उसको एक सही तरीके से लाना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है, और ये एक्सपेरिमेंट कुछ स्कूल्स में आया है और आगे भी आएगा। मैं तो कि धीरे धीरे हमारा ये सिस्टम आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि अब कुछ स्कूल्स ने इंटरनेशनल बोर्ड शुरू करा है, और जो इंटरनेशनल बोर्ड है 11th में, वो एक अलग किस्म का बोर्ड है जिसमें आपको खुली छूट दी जाती है कि आप एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़िए, आप एक लिटरेचर का सब्जेक्ट पढ़िए, आप एक मैथ पढ़िए, आप एक कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़िए। ऐसा नहीं है कि यदि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है तो आपको, यहाँ पर तो कंपल्शन हो गया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही लेनी पड़ेगी। यानी आपको फिजिक्स, यदि आपको बिल्कुल बायोलॉजी में है तो भी आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। मेरी आवाज आ रही है मैम? आई होप आई एम इन द नेटवर्क। Yes. Yeah. So the problem is, so here the international board, it has changed the trend. So a student who's taking economics, who's taking history, who's taking English can take biology also. Why? Because he can always opt for a science का subject. उसको हो सकता है economics के साथ साथ chemistry में interest हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें
उसका मन है, और ये भी सुविधा दीजिए कि कॉलेजेस एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेजेस आपको रोक दें कि नहीं, आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के नहीं आए, इसलिए हम आपको बायोलॉजी में भी ग्रेजुएशन नहीं करने देंगे। ये तो कोई रूल नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये एक्चुअली सिस्टम सेंटर्ड लर्निंग है, कि सिस्टम ने ये सब बना दिया है कि नहीं, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी तभी आप साइंस ले सकते हो। साइंस लेने वाला व्यक्ति यदि फिजिक्स ना लेना चाहे या केमिस्ट्री ना लेना चाहे, तो भी उसको एटलीस्ट बायो पढ़ने की तो आजादी होनी चाहिए, यदि वो बायोलॉजी की पढ़ना चाहता है तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इस तरह से चेंज की जा सकती है। ना केवल उसमें, बल्कि हम बोर्ड में भी, जब हम इंटरनेशनल बोर्ड में 11th 12th में हम ये बदलाव ला सकते हैं, तो हम 10th में भी ये बदलाव क्यों नहीं ला सकते। 10th में ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चा खुद चूज करे, क्योंकि वो एक समयबद्ध है हमारा वो साल, तो उस साल को भी कुछ और तरीके हो सकते हैं, जिस पर हम आगे आने वाली वेबिनार्स में चर्चा कर सकते हैं कि उस वक्त हम क्या। देखिए, हम एकेडमिशियंस हैं, हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई सजेशन देंगे, तभी सिस्टम में बदलाव आएगा। तो हम यदि सजेस्ट करेंगे तो क्यों नहीं बदलाव आएंगे, जरूर आएंगे। So much, ma'am. One more participant is asking why the most of the parents are motivated to send their children to public school in place of government school. People are interested to work under government sector, but their child will read in private school. What is the philosophy behind it? देखिए मैम, फिलॉसफी तो एक ही है कि आज का जो जमाना है वो बहुत ही दिखावे का जमाना है। मैंने अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं कराया, ना ही आपने कराया होगा। तो आज का जमाना थोड़ा अलग किस्म का चल रहा है। एक तो बात हो गई दिखावे की, कि आपको सोसाइटी में अपनी बहुत रुतबा मेंटेन करना है कि आपका बच्चा फला फला स्कूल में पढ़ता है, बहुत ही नामी गिरामी स्कूल में पढ़ता है, महंगे स्कूल में पढ़ता है, भले उस स्कूल में पढ़ाई का लेवल कुछ भी हो, उससे आपको एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, एक बीच में एक समय आया था जब गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स के लिए एक नोशन बन गया था कि वो लोग मेहनत नहीं करते, या वो लोग छुट्टियां ले लेते हैं, या उनके ट्रांसफर्स बहुत होते हैं। अब देखिए, ये एक जेन्युइन सी बात है। मैं ये मानती हूँ कि यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर होती या स्कूल में टीचर होती, और यदि मेरा हर दूसरे महीने ट्रांसफर हो जाता, क्यों? क्योंकि मुझसे कोई इन्फ्लुएंशियल कोई नेता के पास किसी की अप्रोच है और वो अपनी रिश्तेदार को, बीवी को, बेटी को, बहू को वहां पर उस जगह पे लगाना चाहता है, तो वो आपको हटवा देगा। अब क्या होगा कि आप जब तक कोई सिस्टम सेट करने की कोशिश करेंगे, एनवायरनमेंट बनाएंगे, कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे, तब तक आपका तो तबादला ही हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अपना 100% नहीं दे पाते। अब बीच में ये बात हुई कि नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं के बहुत सारे कारण हैं। हम सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हर आदमी काम नहीं करना चाहता। बहुत टीचर्स हैं जो कि काम करना चाहते हैं, मगर उनके पास उनकी कंडीशंस ऐसी हैं एनवायरनमेंट की, गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से। आप देखिए, ये अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक हो रहा है, इस दौरान स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी दे दी गई कि आप सर्वे करिए घर घर जाकर के और उनमें चेक करिए, हमें डेटा दीजिए। मैंने माना कि गवर्नमेंट भी कहाँ से मैन पावर लाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टीचर को छोड़ दो। टीचर का काम पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, समझना है, और फिर उस नॉलेज को आगे पास ऑन करना है। यदि हम टीचर को अपने असली काम से भटकाएंगे, तो वो टीचर अपना 100% तो क्या, अपना 20% भी नहीं दे पाएगा। और जब वो 20% नहीं देगा, तो गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। जब परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, तो उसका नाम खराब होगा, और जब नाम खराब होगा, तो आप क्यों भेजना चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, बताइए आप बच्चों को। तो ये काफी विशियस सर्किल है, और इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और कुछ हद तक हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जिम्मेदार है, और कुछ हद तक हमारा देश का जो भी डेवलपिंग स्टेज है वो इसके लिए जिम्मेदार है। मैम, इस पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जी। हेलो जी मैम। एक्चुअली मैम क्या है कि हिंदी मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल है वो मोस्टली हिंदी मीडियम स्कूल। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो कहीं अगर बहुत कंपटीशन है जॉब के लिए, और अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो आप ये मानिए कि इंग्लिश फ्लुएंसी जो है वो आपको कंपल्सरी है। हाँ। अगर वो नहीं है तो आप कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन रीजन है वो ये भी, मैम ये भी बहुत आपने बिल्कुल, हाँ, है
वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ले जाती है। बिल्कुल मैम, मैं आप भी हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं हिंदी मीडियम में डालूं, क्योंकि अगर उसको मैं हिंदी मीडियम में डालती हूँ और वो बाई चांस गवर्नमेंट सेक्टर में वो नहीं जा पाता, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लायक रहेगा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतना वीक है उस लेवल पे, तो इसलिए भी ये कि अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे काम करे, तो मेरे ख्याल से जो और फॉरेन कंट्रीज में है कि सब जगह एक ही बिल्कुल एक ही मैनेजमेंट है, वो मेरे ख्याल से तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सब जगह एक ही जैसा लेवल होगा। देखिए ना मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इंडियंस, हम हिंदुस्तानी लोगों के संग एक बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हम में, कि हम यदि हिंदी भाषी हैं तो हमें कोई गर्व नहीं है, लेकिन यदि हम इंग्लिश भाषी नहीं है तो हमें बड़ा अपने आप के ऊपर मलाल है। तो ये तो बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है। हाँ जी हाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि आप लैंग्वेज देखिए, मैं तो आज अपने स्कूल को बहुत थैंक्स देती हूँ कि आज उन्होंने मेरी इंग्लिश को बढ़िया करवा दिया, लेकिन ये हिंदी मेरी हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है। यदि मुझे हिंदी ना आए और मुझे इंग्लिश आए तो ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सिर्फ मेरा दिखावा है। यदि मैं इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में सीखना चाहती हूँ, विच इज फाइन, लेकिन यदि आप हिंदी को इग्नोर करके इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं तो वो गलत है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं मैम कि आज का जमाना ही ये है। हिंदुस्तान में हर वो आदमी, यदि कहीं पर कोई वार्तालाप हो रहा होगा और यदि एक जना आके इंग्लिश में 4 सेंटेंस बोलेगा तो सब उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। जो हिंदी में बढ़िया शानदार हिंदी बोल रहा है, उसको देख करके कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें इस बेसिस पर ये करना पड़ रहा है कि हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स की मनमानी को सहन करना पड़ रहा है, और वो जो भी बकवास कर रहे हैं वो आपको सहन करनी पड़ रही है, पैसा देते हुए भी। और आपकी मजाल है कि आप मुंह खोल सकें बड़े स्कूल्स में जाकर के, आप अपनी आवाज उठा सकें। वो आपसे मिलेंगे नहीं, वो आपसे बात नहीं करेंगे। वहां के टीचर्स इतने एरोगेंट होंगे, वहां का मैनेजमेंट इतना एरोगेंट होगा कि वो आप ही से पैसे लेकर के अमीर हो रहे हैं, लेकिन वो आप ही को कोई तवज्जो नहीं देगी। तो ये एक बड़ी विडंबना है हमारे देश की। ये बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर तो वो अपनी ही भाषा बोलते हैं, तो उनको तो भाषा की कोई इशू ही नहीं है जी। कि एक जो हमारे यहाँ की जो सेलिब्रिटीज हैं, मतलब चाहे वो आप एक्टर्स ले लो, चाहे वो हमारे लीडर्स ले लो, चाहे जो भी ले लो, एक बहुत बड़ा उनका रोल होता है पूरी जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसका माइंड चेंज करने के लिए। आप अदर कंट्रीज में देखो, कोई भी लीडर है, कुछ नहीं, वो अपनी लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन हमारी कंट्री ऐसी है जो कभी अपनी लैंग्वेज में कभी स्पीच नहीं करेगी, वो हमेशा इंग्लिश में। तो क्या एक सबको ये हो गया कि बस इंग्लिश ही अच्छी है, बाकी कुछ। मैम देखिए, वो जो हमारी गुलामी के रंग हैं वो अभी गए नहीं हैं, वो अभी हम पे चढ़े हुए हैं, तो समय लगेगा। मैम ये गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो ये डिफरेंस है, ये तभी दूर होगा जब एक जैसी एजुकेशन सब जगह होगी। जी मैम, लेकिन बिल्कुल आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इस पर आवाज यदि उठती है, और यदि देखिए, हमें ही, मैं कहती हूँ, समाज में जो चेंज लाएंगे वो कौन लाएंगे? हम ही लाएंगे। लेकिन मैम हम तो खुद ही दोषी हैं। हम वो चेंज लाना, हम दूसरों को तो कह रहे हैं कि, लेकिन हम खुद वो चेंज नहीं लाना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई बात नहीं। देखिए, कई बार हमें समय के फ्लो में बहना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम कल को, हमारा बच्चा ही हमसे सवाल कर सकता है कि आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में, आपने हमारे अंदर ये क्यों भर दिया कि हम हमेशा किसी माध्यमिक विद्यालय के पढ़े हुए कहलाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और इसके लिए समय लगेगा मैम। जब तक हमारी मेंटालिटी में हम ब्रिटिश रूल को नहीं हटा पाएंगे, जब तक हम उनको सुपीरियर समझ रहे हैं, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, आप जैसे ही हम यदि किसी फॉरेन कंट्री के ट्रिप पर जाते हैं, तो आप देखिए कि भले उस फ्लाइट में पूरे हिंदुस्तानी बैठे हों, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे से हिंदी में बात नहीं करती। भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आप अचानक आपको सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करनी है? आप अपने घर में भी तो अपने बच्चे से हिंदी में बात करते हैं, जो कि आपकी मातृभाषा है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि घर से बाहर निकल के आपको ये दिखाना है कि आप और आपका बच्चा सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते हैं? ये कोई बहुत, दिस इज नॉट अ प्राउड फीलिंग, लेट मी टेल यू। मतलब मुझे तो इसमें कोई बहुत फक्र की बात नजर नहीं आती। ये जो
मैकॉले जो है कि उन्होंने जो कहा था ना कि चाहूंगी ये सिर्फ इंडियंस रहेंगे, लेकिन ये मेंटली जो है वो एक अंग्रेज हो जाएंगे। तो बिल्कुल वो वाली बिल्कुल वो जो उनका मैकॉले की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल अभी तक फॉलो कर रहे हैं हम सही लोग। थी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम इसलिए ऐसा है कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करें। तो आज से हम इस वर्कशॉप में आगे मैम शिल्पी मैम ये ध्यान रखते हैं कि सारा क्वेश्चन राउंड हिंदी में ही किया जाए। पीपीटी तो चलो ठीक है, हिंदी में थोड़े मुश्किल होते हैं बनाने, वो भी हमारी वो है, पर अब क्या करें, जैसा है सिस्टम है। पर क्वेश्चन आंसर अब हम मेरे हिसाब से हिंदी में करेंगे तो मजा भी आएगा और हम थोड़ा सा चेंज लाने के लिए आगे भी बढ़ पाएंगे। यस थैंक मैम, यू। बट मैं थोड़ा सा मैम इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। मैंने देखा है मैम, ज्यादातर लेकिन मैं देख रही हूँ फॉरेन कंट्री में हमारी कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है। वो खादी पहनते हैं, खादी यूज करते हैं और हमारी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, योगा करते हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं। बिल्कुल इवन लोग यहाँ पे अगर घूमने आते हैं तो मैम वो यहाँ की ड्रेस पहनते हैं, हमने देखा है वो साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हें कॉपी करते हैं। हम अपने देश में रह के भी उन्हें कॉपी करते हैं और तब हम वो करते हैं कि नहीं हम उनके जैसे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ये मैम मैं तो कह रही हूँ फिर भी देखिए हिंदुस्तान में एक अच्छी बात है कि जो हम अभी हम सब महिलाएं बात कर रही हैं, मैं कहती हूँ कि मतलब नॉट सभी मेल इस बात को अदरवाइज ना लें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यदि हिंदुस्तानी कल्चर थोड़ा बहुत भी जिंदा है हिंदुस्तान में, तो वो लेडीज की वजह से जिंदा है और इस पर एक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, क्योंकि हम औरतें ही हैं जिन्होंने आज भी बिंदी लगाना बंद नहीं किया है, साड़ी पहनना बंद नहीं किया है। सलवार कमीज वैसे हमारा परिधान नहीं था, पर ठीक है उसको हम इंडियन अटायर ही मान रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी पहनना बंद नहीं किया है। और कहीं ना कहीं हम अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, हम व्रत उपवास कर रहे हैं, हम घरों में रंगोली बना रहे हैं, हम अपने दिवाली पे घर सजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं औरतों ने इस कल्चर को आज तक जिंदा रखा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी अपने बच्चों को सिखाएंगे कि इस कल्चर को आगे रखें। क्योंकि आप पहनावे में देख लीजिए, आज आपको 10 में से सिर्फ एक आदमी, मुझे तो लगता है एक भी पॉसिबल नहीं है, जो आपको धोती और कुर्ते में दिख जाए यदि आप अभी बाहर निकल के जाते हैं। तो हर आदमी विदेशी पहनावे में है। तो आदमियों ने अपने आप को काफी बदल लिया है, पर हम औरतों ने अपने आप को अभी तक कल्चर को, अगर कोई एक मेल अगर अपनी लाइफ में एक ही चीज पहनता है शादी के टाइम पे, बस कुर्ता पजामा जी, वो वन और लास्ट डे होता है उसका, उसके बाद में बस हाँ, वो वापस अपने पैंट शर्ट में आ जाते हैं, जीन्स टी शर्ट में आ जाते हैं। तो पर हम महिलाएं बहुत ध्यान रखती हैं और हम आज भी लहंगों और साड़ियों और अपने देसी परिधान में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम जब तक महिलाएं रहेंगी एक्टिव, तब तक हमारा कल्चर बिल्कुल बढ़िया चलेगा। तो हमें बहुत, वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन फीमेल्स। So now time to close the session. Yeah, now. I know it is late. Yeah. And thanks a lot for wonderful session, ma'am. And thank you so much, ma'am. Welcome, ma'am. And I'm again sorry for the network problem. I hope it doesn't occur again. And it was a wonderful session. Yeah, I really thank to all participants for the patience. And tomorrow we will catch you on the same time. And I again request to all participants, please log in on the right time and discuss more, ask more, learn more. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Yeah, welcome, ma'am.